Good morning, one and all present here. Honorable Vice Chancellor, sir, respected Registrar, sir, respected Deans, respected Head of Departments, respected faculty members, and dear students. I, Dr. Ritu Jain, on behalf of Department of Computer Applications, Computer Science, and Forensic Science of Medicaps University, welcomes you all to this webinar. The topic of today's webinar is Emerging Trends in Cybersecurity and Cybercrime. In the current scenario, cybersecurity is unquestionably a growing matter of public concern. This webinar is going to increase your awareness and satisfy your quest regarding latest cybercrimes and cyber trends. We are fortunate enough to have amongst us a well-known cybersecurity expert and trainer, Mr. Gaurav Rawal. Mr. Gaurav Rawal is associated with St. Paul Institute of Professional Studies as head of Department Computer Science for more than 9 years. He has 18 years of extensive experience in academics and corporate sector. He has published 13 research papers and have won international award to his credit. Since 2013, he has been associated with Police Radio Training School as a guest faculty for state and national level training courses related to cybercrime prevention and investigation. He is also associated with Police Training College as a cybercrime trainer and have trained newly appointed DSPs, CSPs, PSIs, and constables. He has also conducted numerous webinars and training programs on cybersecurity and cyber forensics in different organizations of Indore. We are lucky to have such a knowledgeable resource person today. So without further ado, I would like to invite Mr. Gaurav Rawal for the session. Sir, please. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. So, very good morning to one and all present here. First and all, I would like to give thanks to the Medicaps University who provided me a platform, a chance to interact with the young aspirants as well as the faculty members of my fraternity, because I am also belongs to a academic fraternity. So, I am thankful and grateful to the college initiative that they took initiative in this regard, because this is the current issue, and then the scope of the cyber security and its security is now it's a huge and multi-dimensional problem as far as the globe is concerned. So without further ado, we would like to start our program. First and all, I give to thanks to the department and then the in charges and the convener and co-convener, Pritesh sir, who give me the chance, and then principal sir and the dean sir, who so keen to have the program like this before you people, all the students and faculty members and other staff also. So I'm just going to share my screen and then we'll start because I used to come with some statistics and some facts and presentation. So I'm just sharing my screen. So is it visible to all of you? Yes, sir. Fine. So now we'll start today's webinar on that the emerging trends in the cybersecurity and cybercrime. So this is the high time to discuss, and after the pandemic, the situation is not so good as far as the complaint is coming to the various law enforcement agencies. Fortunately, I got chance to work with two of the police training institutes. One is police training college and one is police radio training school, and Indore police also since last 2.5 years to train the various police stations and help them to get some contribution of mine to get the cyber investigation more ease. So we'll start our session. See, after the post COVID situation and pandemic, and even pre-pandemic also, that cybercrime was just increasing, because since last 2.5 years, what we have seen that the number of the complaints which we are receiving of the related to the cybercrime and the various frauds which has been doing by these cyber criminals was abruptly increasing. So what we thought that this is the high time, because now this is not only remaining the multi-level or multinational or multi-dimensional problem or multi-state or region problem.
And being academician, this is our responsibility, because now our responsibility is getting more and more increasing. अगर मैं बताना चाहूंगा कि क्यों एज ए शिक्षाविद हमारी जवाबदारी ज्यादा बड़ी है इस फील्ड में, क्योंकि ये पैंडेमिक के बाद, ये कोविड सिचुएशन के बाद हमने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को 80 टू 85 और 90% हमने पूरा हमारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, स्टाफ्स को, इवन अदर स्टाफ्स को आल्सो वी ऑलरेडी पुश देम, फोर्सली पुश देम टू convert on the online or virtual world or on the digital world. So there's a one company that is educational organization named Cybin. They just research on that, and then they found that our presence in this virtual world and cyber space, especially in the this post COVID and during the COVID era, is increasing more than 80%. So पहले जो हम 30% अगर हम यूज करते थे, हम लोग बीइंग a researcher, being a faculty member, we know that we used to send to the Google form for the questionnaire and to help our research and get the samples and sampling and random sampling, something like that. And even we used to give the assignment to the students by mail or WhatsApp group, but not more than that. But after the pandemic, our whole system is now shifted to the education. So what we foresee to our all the stakeholders, included the faculty members, the management, and then the students, that they're supposed to come on online. So we just gave them a technology, but this time without the manual, and we are not prepared for that. So the situation is what is going on कि हमने हमारे जो young aspirants हैं उनको tools तो दे दिए, चाहे वो school going हो, चाहे primary education हो, pre-primary हो, even the college education, higher education also. But are we giving them the proper knowledge and guidance to how to operate the technology, how to use that particular things with the manual, and what are the law? So today's webinar, we are just going to discuss, and with my bit knowledge about the cyber crime and investigation, and being now associated as a consultant with the law enforcement agencies. So हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि क्या चीजें हैं जो अब हमारे लिए बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं, जिसको हमको सोचना चाहिए. तो हम लोग विदाउट फर्दर एडू विल स्टार्ट आवर सेशन. देखिए, द कन्वेंशन क्राइम इज नॉट अबाउट टू वैनिश. अभी ये हो रहा है कि हमारे पास वी हैव, बिकॉज आई बिलोंग्स टू इंदौर, सो वी हैव 41 पुलिस स्टेशन अवेलेबल हियर एट इंदौर, एंड वी हैव 2 स्पेशल ब्रांचेस. वन इज स्टेट साइबर सेल, वन इज क्राइम ब्रांच. So the complaints which we are receiving in each police station, अगर हम बात करें कन्वेंशनल या पारंपरिक अपराध की बात करें, तो कोई किसी की पॉकेट कट गई या किसी की चेन स्नैचिंग हुई या रॉबरी हो गई, these are very few complaints. But if we see after the pandemic की साइबर से रिलेटेड कितनी कंप्लेन है, तो each police station may have more than 15 to 20 complaints in a month. You can imagine that we have 41 police station, and especially, and then 2 special agencies also. So in a month हमारे पास 41 into 20. So 800 to 1000 or more than 1000 complaints we are receiving. If I got 3 days to investigate particular one problem or one complaint, you can imagine कि आपकी जितनी भी problems है, 800 problems है, उसको again multiply by 3. So we need 240 days, almost 1 year to resolve. So the flood which we are getting from the society and various stakeholders from the society, so it is not the only job of the police and law enforcement agency to interrupt this kind of complaints or to solve them. Now the academician and all the stakeholders of the society, because all are using the technology, it is the solemn duty and responsibility of all the members of the society that we supposed to come. तो अब हमारे पास किस तरह के क्राइम आ रहे हैं यूजुअली जो कंप्लेंट्स आ रही है? एक तो 2 रीजन है इसके. एक तो इजी टू कम्युनिकेट. So the conventional crime is converted into the white collar crime. White collar crime means the sophisticated crime, or we can say the specialized crime, which needs only the skills to a device, whether a laptop or laptop or desktop or tablet or mobile device, and we need only one internet connection with the few data available with us, and which is very easy to get from any. Being academician and being a college and institution organization, we know that how this data is available very cheaply. 2000 rupees you can get the 1 lakh students data along with their name and phone number and other details. So it is very cheaply available in the market. So what this cyber criminal is doing, they are just getting one connection and one fraud, one mobile connection and one internet connection, and that mobile connection is also they are getting with the fake documents, submission of the fake document, and on the basis of that, so they are quietly assured and they are confident that they will be not caught by the one or another
law enforcement agency. But unfortunately, the agency is also doing that proactive way. So before that, I am doing this kind of webinar since last 4 and 5 years. But now the awareness is not needed because after the pandemic situation and post COVID, अब सिर्फ awareness से काम नहीं चलेगा. There are two things. One is knowledge and second thing is aware of that knowledge. But what we felt and what we saw and observed and what we noticed that people are even not have the knowledge. See, once you have knowledge and then you're supposed to aware of that knowledge and then keep apply that knowledge. But if you do not have the knowledge about that particular thing, that how I may expect from each one of you or every one of you that you're supposed to be aware of that, those kind of things which you are not at all aware of that. So अब हमारे पास ये हो गया कि हमको अब ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है. नॉट अवेयरनेस इज नॉट द solution. Now we have to do and think and execute in the manner which the cyber criminals are thinking. So आपको उस तरह से सोचना जैसे कि cyber criminal किसी को ठगने के बारे में सोचता है. So once you got the call from any fake call, you have to think quickly and very actively that, and you have to doubt each and every person who is calling you and try to get your data, especially your credential or any other credential. So you can't believe blindly to one of them, or that I am calling from a GS agency and then you are my customer and we are just doing that, updating the KYC and then we need your data. Or I am calling from your insurance company, I am calling from your bank, I am calling from the credit card service provider, I am calling from your mobile service provider and I need your data. So you have to doubt each and every person. So you have to be very proactive. Because law enforcement agency, you can imagine that every month 800 or 1000 complaints and next month again 1000, then again 1000, then again 1000. So that flood is coming that it is not on, we are not enough. Law enforcement agencies available or the skilled people available in the department also. And now it's the end. One more thing that in the researchers found in this post-COVID also, that 90% of the cyber crimes are committed due to the lack of awareness and the human errors of the users. So 90% मानव त्रुटि और भूल के कारण ही साइबर क्राइम हुए हैं. ऐसा नहीं कि the people who are doing that kind of things, they are much more expert. No, they are just doing the fake call to 200 people. अब 200 people में से 70 या 80 फंस जाते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम. They are just randomly calling. They are not targeting only you, that you are the specific person. That is why something called phishing. We in the next slide we will discuss about more than. So अभी जो क्राइम हो रहे हैं वो इस तरह के क्राइम हो रहे हैं. फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर पोर्नोग्राफी, इट्स वन ऑफ द अनदर इश्यूज. Malware attacks, ransomware attacks, botnet attacks, keyloggers attacks, email spoofing, sale of illegal articles, and then sextortion. This is the new things which 3.5 months we are just getting the more and more cases related to this, especially in this pandemic situation when people got stuck and that their home and hometown, and that they are just interacting with the people or unknown people on the Facebook and WhatsApp and other social media, and they are sharing their thoughts, views, and their personal credentials also, sometimes their personal life also, sometimes their personal literature also, and then they got accused of this kind of sextortion. So हम लोग अभी बात करते हैं जल्दी से. सबसे पहले समझा जाए कि सब लोग बात करते हैं साइबर अपराध की, साइबर अपराध से बचना है, इसकी सुरक्षा के उपाय की बात करते हैं. हम लोग भी कोशिश करते हैं सबको अवेयर करने की. Law enforcement agency are running various awareness programs in the police control room headquarters Indore also. State cyber cell is continuously doing the program with the schools. Indore police is also doing the schools and colleges and institutions and organizations. In the corporate sector also, to know them and to aware them about the data breaching and all. But लोगों को पता भी है साइबर क्राइम क्या होता है. देखिए, पहले तो एक हमको समझना होगा किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ फर्म रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो दैट इज समथिंग नोन एज द लॉ ऑफ द लैंड. तो वैसे ही अगर आप एक साइबर एक अलग वर्ल्ड है, दैट इज द वर्चुअल वर्ल्ड, जिसको हम आभासी दुनिया बोलते हैं. इस दुनिया में रहने के भी कुछ नियम है जो किसी सरकार विशेष ने बनाए हैं. 1999 तक तो हमारे पास कोई ऐसा फिक्स हमारे पास आईटी एक्ट नहीं हुआ करता था. देन 26/11 के बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन लेकर आई असेंबली में, और आपको बता दूं कि ये 12 मिनट में ही पास हो गया बिकॉज ऑफ दैट टेररिस्ट अटैक, और इसको एग्जीक्यूट किया गया 2000 में. तो भारत हमारा ऐसा 12वां देश बना विश्व का, 12th कंट्री हु हैव देयर ओन साइबर लॉ. सो हमने स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड 2000 में कॉन्स्टिट्यूटेड द इंडियन आईटी एक्ट, समथिंग नोन एज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, क्योंकि 2000 में लॉन्च किया था, मतलब एग्जीक्यूट करना शुरू हो गया था, लागू तो
2000 में हुआ, 99 में वो पारित हो चुका था। देन बट उस टाइम तक 20-21 साल पहले की बात है, तब तक हमारे पास हैंडहेल्ड डिवाइस वेरी लिमिटेड थे, हमारे पास उतने डिवाइसेस नहीं थे। सो हम हमारे पास जो मेजर जो डिवाइस था वो था कंप्यूटर और लैपटॉप। तो उस टाइम जो साइबर लॉ जब हमने बनाया तो उसमें जो डेफिनेशन दी साइबर क्राइम की, उसमें ये दी गई कि एनी क्राइम कमिटेड यूजिंग द कंप्यूटर, कोई भी ऐसा असंवैधानिक कार्य जो कंप्यूटर को द्वारा किया गया हो, जिसमें कंप्यूटर को या तो टूल की तरह यूज किया गया है या कंप्यूटर को जिसमें टारगेट की तरह यूज किया गया, मतलब या तो कंप्यूटर पर ही अटैक किया हुआ है या कंप्यूटर का उपयोग करके किसी और को टारगेट किया गया। बट जल्द ही जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई, जैसे जैसे नए डिवाइसेस एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस इमर्ज हुए, सो अब क्राइम अलग अलग तरह से होने लगा। अब स्मार्ट टीवी के थ्रू भी क्राइम होने लगा। अब ऑटोमेटेड माइक्रोवेव ओवन विच हैज द कंप्राइज with the microchip, and which that chip is also, being a computer science students and faculty, we know that that chip is also comprised with the one coding a program, maybe a if else program that okay, time equals to 15, just execute terminate the program, or तो तभी हम माइक्रोवेव या ऑटोमेटेड फुली ऑटोमेटिक मशीन का हम टाइम सेट करते हैं, 15 मिनट बाद ऑट ऑफ हो जाती है। हाउ कम? Because it is comprised with the chip and chip is comprised with the program, and this program can be hacked or manipulated or accessed by anyone due to various ways, तो उनको हैक किया जा सकता है। ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आएंगे। फिर साइबर अपराध में जालसाजी और ठगी को भी साइबर अपराध माना गया है। किसी ने आपसे ओटीपी ले लिया, आपको बातों में उलझाकर थ्रू सोशल इंजीनियरिंग आपसे कोई सोशल मीडिया पे बात करके आपकी क्रेडेंशियल लिए हो या आपकी फैमिली के बारे में आपका रेकी हो और आपको किसी तरह से चीट किया हो, ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आएगा। सो अब जो हमने जो अमेंडमेंट किए जो साइबर ड्यू टू वेरियस केसेस रिपोर्टेड, तो भारत सरकार ने भी सोचा और फिर सन 2008 में हमने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 संशोधित संस्करण जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट वर्जन, उसको वापस से अमेंड किया और उसमें फिर उसकी डेफिनेशन चेंज की गई। नाउ जो अभी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट 2008 अमेंडमेंट, इसके हिसाब से एनी क्राइम कमिटेड यूजिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब यहाँ पे कंप्यूटर की जगह एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले ली। एनी मींस maybe a handheld device, maybe a microwave oven, maybe a fully automated washing machine, maybe a digital lock door system, yeah, door lock system, or maybe any other kind of devices which are comprises with the Wi-Fi connection and internet connectivity. So you may be hacked easily, and you are cheated with this one or another kind of cyber crime. इसमें दो तरह से अपराध हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि या तो आपका कंप्यूटर को या डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या तो टूल बनाया गया या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टारगेट किया गया। तो किस तरह के अपराध आते हैं कि जिनमें अगर टूल बनाया गया तो किस तरह के अपराध उस श्रेणी में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपके उपकरण को, डिवाइस को एज ए टारगेट यूज किया गया और या टूल यूज किया गया, तो दीज आर द फ्यू लिस्टेड क्राइम्स व्हिच इज coming under these two different categories. One is your computer, means any electronic device, any computing machine targeting by someone. So denial of services, आपको किसी भी सेवा से बाध्य किया जा सकता है, that is spreading virus and malware, website defacement, spoofing, one another issue, that is you are calling to someone or mailing to someone or SMSing to someone with another identity, that is something known as spoofing with the help of any software or any other program, third party program. Then scheming is that one of the things. Scheming is that you can clone the device of any other device, your digital document like a credit card or debit card. The scheming devices are also, and scheming is also there, that farming, phishing, wishing through a SMS, through a phone call, or through a bulk SMS or through a bulk mail. Spamming is one other thing that this is coming under this category. हम जल्दी से करते हैं। That financial fraud is coming as a tool, कि आपके डिवाइस को, आपके मोबाइल को एज ए टूल यूज किया और ओटीपी आपसे मुंह से आपसे बुलवा लिया गया, एंड देन या आपके डिवाइस को टूल बना के कोई क्यूआर कोड को स्कैन किया गया और आपसे फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। डेटा मॉडिफिकेशन, कोई आपके डिवाइस में कोई किसी तरह के डेटा मॉडिफिकेशन कर पाए हैक करने के बाद, आइडेंटिटी थेफ्ट, जो डिजिटल आपकी जो पहचान उसको चुरा के। तो अभी हम तो डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे आगे। एंड साइबर स्टॉकिंग इज अनदर थिंग, एंड साइबर बुलिंग स्पेशली इन कॉलेज एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स. You are surprised that we are just getting the much more complaint from the schools also, and even the higher secondary level students and middle class students, they are just committing this kind of crime just because of the lack of the law of
द लैंड। अब उनको पता नहीं कि किसी को धमकी भरे या किसी को मेल लिखने के लिए हमारे पास कोई साइबर क्राइम में कोई अंडर सेक्शन है जिस धारा के अंतर्गत वो अपराधी साबित हो सकते हैं और उनको इस पे सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। उनको ये नहीं पता कि किसी को व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी को अपशब्द बोलना है, किसी की फेसबुक वॉल पे जाके कोई ऐसी अनडिग्निफाइड कोई कमेंट करना, टिप्पणी करना जिससे उनकी कोई मानहानि हुई हो या ड्रेसिंग डाउन हुए हो, जिनकी गरिमा गिरी हो, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। अभी हम देखेंगे इसको आगे से दैट द डेटा थेफ्ट, pornography is the another current issues which is now coming, and this kind of complaint the various law enforcement agencies are getting from various stakeholder of the society। ऐसा नहीं कि जैसे ये pornography सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर से आ रही है, कि एक हमारे पास डेटा है पूरा वेरियस से, बिकॉज बीइंग associated with the law enforcement agency, हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं जो सीनियर सिटीजन्स के थ्रू इस तरह की कंप्लेंट्स आई है, whether they become a victim or they become offense, मतलब उन्होंने भी अपराध किया या उनसे अपराध हो गया या उनको अपराधी बनाया गया इस तरह। सो हम जल्दी से थोड़ा सा क्विक रिव्यू देखते हैं। There are three categories broadly in as far as the cyber crime is concerned. So cyber crime व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध, साइबर क्राइम समाज के विरुद्ध, या साइबर क्राइम संगठन या देश के विरुद्ध। सो इसमें भी डिफरेंट तरह के क्राइम आएंगे। अभी हमारे पास स्टिपुलेटेड टाइम है, दिस इज नॉट enough time available with us कि we can discuss all this kind of categories. So I am just getting this first of the category, cyber crime against individuals. So व्यक्तियों के साथ किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, जो अभी हम रिपोर्ट हमारे पास आ रही है जिस तरह से। So we can have a quick look. स्पेशली साइबर क्राइम जो ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं या जिसमें लोग विक्टिम बन रहे हैं या किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, वो सोशल मीडिया के थ्रू उसका यूज करके ज्यादा हो रहे हैं, especially after the post covid situation whereby we are in that particular, we could not out from our home more than 3.5 months। तो ये जो टाइम था 90-100 दिनों का टाइम था, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन आए क्योंकि वो फिजिकली किसी से मिल नहीं पा रहे थे। सो इस ड्यूरेशन में या इस समय में ज्यादा जो अपराध हुए वो सोशल मीडिया के थ्रू हुए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, या इस तरह की हैकिंग की। तो किस तरह के क्राइम हुए जो मेजरली, देयर आर मेनी, बट जो मेजॉरिटी जो रिपोर्ट की थी, जो रिपोर्ट हुए जो क्राइम, वो है आइडेंटिटी थेफ्ट के हुए, दैट इज फाइनेंशियल फ्रॉड अंडर कमिंग दैट, साइबर स्टॉकिंग, another is cyber bullying, then photo pornography, morphing, that or editing we can say, that transmit the pornographic content, ये एक बड़ा अभी इस तरह के आ रहे हैं। then malware attacks, and इसी का एक रिफ्लेक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ pornographic content का, sextortion आ रहा है क्योंकि funds, few people mutually communicated and then shared their photographs or videos of their private lives, and then one is become a victim and one become offender, और उन्होंने उनको blackmail करना शुरू किया। तो sextortion is another form of that particular transmission of pornographic content। इसी का रिफ्लेक्शन या इसका रिप्लिकेट बोलेंगे कि इसी का साइड इफेक्ट या इसी का इफेक्ट आया है। हम जल्दी से बात करते हैं कि अब साइबर क्राइम में सोशल मीडिया पे जो क्राइम होते हैं वो मेजरली हमारे पास आईटी एक्ट है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 अमेंडमेंट, तो उसके अंदर कुछ अंडर सेक्शन है। तो अंडर सेक्शन 66 एक हमारे पास है जिसके अंदर वो ए से लेकर एफ तक होती है, उसके अंतर्गत ये बहुत सारे अपराध आते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर कम्युनिकेशन करने से रिलेटेड। तो अब सबसे बड़ी बात, चूंकि मैं फैकल्टी मेंबर से और मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूं, और आप सभी लोग बड़े गुणीजन हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, और आप लोग सभी लोग ये बात मानते हैं कि आज का समय सूचना प्रौद्योगिकी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, टुडे इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड वी नीड टू हैव the various social accounts to carry out our best। हमारा जो भी बाहर आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए, my research work, my notes, my blogs, but how much? So these are the perspective। ये मैं थोड़ा सा आपको उसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर you supposed to tweet on something, जैसे ट्वीट करते हैं या रीट्वीट करते हैं, अगर ट्विटर हैंडलर से, मेरा भी ट्विटर हैंडलर है, मेरा फेसबुक भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा लिंक्डइन भी है, मेरा Pinterest अकाउंट भी है, माय यूट्यूब चैनल इज ऑल दैट। व्हाई दिस? बिकॉज आप ट्वीट करते हैं तो उसकी जो एज है, जो आपकी बात है, जो आप किसी करंट इश्यू पे बोलना चाहते हैं, कम्युनल इश्यू पे बोलना चाहते हैं, नेशनल इश्यूज पे बोलना चाहते हैं, कोई सोशल इश्यूज पे बोलना चाहते हैं, ज्यादा नहीं तो नई एजुकेशन पॉलिसी पे बोलना चाहते हैं, आप कोई अवेयरनेस करना चाहते हैं, इफ यू आर जस्ट कोई पॉवर्टी पे बोलना चाहते हैं, लेबर क्लास पे बोलना चाहते हैं, किसी भी
इश्यू पे आप बोलना चाहते हैं, इसीलिए आप इतने तरह के प्लेटफॉर्म पर हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछता हूँ सभी से कि जब ये स्लाइड दिखाता हूँ कि आप बताइए आप ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप क्यों यूज करते हैं? somebody used to say कि सर क्योंकि नॉलेज मिलता है, अनदर पर्सन से कि सर वो चूंकि सबसे कनेक्टेड रह पाते हैं। तो मैंने बोला अगर नॉलेज और कनेक्टेड रहने की बात है, अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब अगर बोलते हैं दैट योर पोस्ट इज ओनली सीन बाय यू, योर डीपी इज ओनली सीन बाय यू, योर कमेंट इज ओनली सीन बाय यू, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मोर देन 75% 80% पीपल में विड्रॉल और मे बी दे में जस्ट चेंज दैट प्लेटफॉर्म और किसी दूसरे मैसेंजर पे चले जाएंगे, बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल। हम सामाजिक प्राणी, हमको अपनी बात लोगों से कहना अच्छा लगता है, लोगों के द्वारा हमारी बातों को प्रोत्साहन देना और एप्रिसिएशन पसंद है, इसीलिए हम लोग इस मीडिया पर आते हैं। अगर हमें पता लगे कि अगर आई सपोज आई हैव 5000 पीपल इन माय लिंक्डइन अकाउंट कनेक्टेड विद मी एज अ कनेक्शन, एंड इफ आई पोस्ट समथिंग एंड आई कुड नॉट गेट मोर देन 5 लाइक्स, मैं जल्दी उन लोगों को या तो अनफ्रेंड कर दूंगा या कनेक्शन उनसे विड्रॉल कर लूंगा, या मैं ऐसा फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ पर कोई मैंने जो पोस्ट की उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। So basically, we wish to be in limelight. We wish to be in the appreciated by people. Okay, fine enough. लेकिन इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि we have to go to the higher perspective and higher purpose, कि अगर मैं अपनी बात कहना भी चाहता हूँ तो क्यों 18 मिनट में वो बात खत्म हो जाए, क्यों 5 घंटे तक वहां पर रहे, वॉल पर रहे, स्क्रॉल डाउन हो जाए, क्यों 21 घंटे तक इंस्टा पर रहे, क्यों 24 घंटे तक सिर्फ लिंक्डइन पर रहे। आई यूज टू यूज इधर यूट्यूब चैनल और माई ब्लॉग, ताकि वो कम से कम 20 दिन, 1 महीना या फिर 2 साल तक मेरी पोस्ट रहे, लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देख सके, अवेल कर सके। इंस्टेड ऑफ ओनली पोस्टिंग ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फाइन इनफ, बट इफ आई एम wish to share my serious research and my serious work and my contribution towards the society for any kind of issues or any other help which is I think that it will be helpful for the society. So मैं हमको स्टूडेंट को ये नहीं बोलना है कि आपको टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना है, बट दिस टाइम विद द मोर प्रूडेंस, विद द मोर विजडम। तो आपको हायर पर्पस सोच के आप ये सारी चीज करिए, लेकिन आप खुद चुन लीजिए कि प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए, देन यू विल बी इन द सेफ मोड। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देन अगर हम बात करते हैं कि अभी मुझे कुछ हमारे पास एक बड़ा करंट इश्यू चल रहा है, न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी। सोशल मीडिया पे एक अनदर प्लेटफॉर्म है हमारे पास व्हाट्सएप। अभी ये पॉलिसी की बात हम करें तो जल्दी से मैं इस पर रिव्यू देता हूँ कि व्हाट्सएप पॉलिसी का एक डील क्या है। देखिए, आपको पता है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये जितनी भी साइट्स हैं या सोशल साइट्स है, दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर अ सोशल कॉज। ये कोई समाज सेवा के लिए नहीं आई यहाँ पर। दीज आर ऑल कमर्शियल वेबसाइट्स। बट डिड व्हाट्सएप चार्ज एनी सिंगल रूपी? मुझे मालूम 2012 में जब व्हाट्सएप आया था तो ये कहा गया था कि अभी शायद 2 साल तक फ्री रहेगा, देन व्हाट्सएप विल चार्ज समथिंग टू यू पीपल। सो लोगों ने भी बोला चलो, जब तक जैसे जियो ने फ्री किया था 4-6 महीने, तो उन्होंने सोचा चलो व्हाट्सएप आया तो हम फ्री तो यूज करें, because WhatsApp knows that people will not pay or they may not listen to the WhatsApp if they are coming with the terms and conditions. तो उन्होंने फ्री किया। लेकिन 2 साल के बाद भी आज तक WhatsApp charge a single rupee to you? No. Did Facebook charge a single pie? No. Did Gmail or did Instagram or did YouTube channel charge a single pie to you? No. Then what is the business model of all these things? Google का क्या business model होगा? WhatsApp का क्या business model होगा? How they do? What they do? ये कैसे बिजनेस करते होंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। इफ दे आर नॉट प्रोमोटिंग एनी प्रोडक्ट टू यू, व्हाट्सएप पे कोई ऐड नहीं आता, व्हाट्सएप पे आपसे कोई ऐड नहीं मांगता कि आप अपने बिजनेस का मुझे कोई प्रमोशन दीजिए, मैं कहीं पर करूंगा, किसी को सेंड करूंगा। तो व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू व्हाट दे डू, कैसे करते होंगे ये हमको सोचना पड़ेगा। इफ दे आर नॉट कमिंग विद द प्रोडक्ट, व्हाट इट मीन्स, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? Naturally your data. So अब ये WhatsApp की न्यू पॉलिसी आई है। अभी तक भी WhatsApp आपकी जो हम जांच एजेंसी जब हम काम करते हैं WhatsApp, आपको जानकर आश्चर्य होगा, सन 2019 तक WhatsApp किसी भी जांच एजेंसी को किसी तरह का डेटा नहीं शेयर करता था। अगर किसी ने WhatsApp से किसी पे चैट की है तो कोई डेटा जांच एजेंसियों के पास, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। फेसबुक करता था, गूगल करता था, WhatsApp नहीं करता था। देन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्स बनाया कि ना, इफ यू विश टू हैव बिजनेस इन दिस कंट्री, दैट यू हैव टू शेयर द डेटा एंड यू हैव टू शेयर द क्रेडेंशियल, स्पेशली इन द ऑफेंसिव केस, क्रिमिनल कोई केस ऑफेंस हुआ है, देन अपराध हुआ है, तो आपको देना पड़ेगा। और आपको ये जान के, बिकॉज बीइंग ए इंदौरी एंड बीइंग ए पर्सन हु बिलोंग्स टू द मध्य प्रदेश MP,
मध्य प्रदेश पुलिस को ये सबसे पहली सफलता लगी थी 2019 में, और उसमें भी इंदौर साइबर सेल ने ये इनिशिएटिव लिया था, जो कि हमारे इंदौर साइबर सेल को आई एम प्राउडली से दैट विच इज सुपरवाइज्ड बाय द एसपी मिस्टर जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह सर के ही सुपरविजन में स्टेट साइबर सेल जब से बना है तब से काम कर रहा है, वो एसपी है वहां पर। he took a hardcore initiative, and in the particular case he wrote to the WhatsApp, and 2019 में सबसे पहली बार WhatsApp ने चैट हिस्ट्री और ये सब शेयर किया था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ, भारत में किसी पहली एजेंसी के साथ, वो थी इंदौर साइबर सेल मध्य प्रदेश पुलिस के। उसके पहले ये कोई WhatsApp हमसे किसी तरह का कोई लॉग नहीं देता था कि किसने किससे क्या बात की, किसने किसको क्या भेजा। अभी ये जो नई WhatsApp पॉलिसी के ऊपर इतना जो इशू हो रहा है, अभी तक भी ये था कि जब आप WhatsApp एक्सेप्ट करते थे, WhatsApp वांट्स टू एक्सेस योर मीडिया गैलरी, WhatsApp wish to access your contact list, WhatsApp wants to access your voice recording, WhatsApp wants to access and manage your phone calls। अब WhatsApp कॉलिंग अगर यूज करना चाहते हो तो ये सब चीज तो पहले भी थी। तो अभी क्या इसमें इशू हो रहा है कि लोगों को जब ये, तो आप जब इंस्टॉल करते हो WhatsApp 2 साल पहले भी किया था, तभी भी आपने यस एग्री किया था कि WhatsApp विश टू एक्सेस योर कॉन्टेक्ट्स, तो आपको WhatsApp ने पहले भी एक्सेस कर चुका है आपकी, तभी तो वो बताता है। WhatsApp विश टू गेट योर जियो लोकेशन, अरे अगर मैं आपको अपनी WhatsApp लोकेशन भेजना चाहता हूँ, या मैं अगर आपके मेडिकल्स कॉलेज आना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी आना चाहता हूँ, सो मैं बोलूंगा कि हमारे जो रितेश सर है कि सर मैं आई एम अननोन इन द इंदौर एंड आई एम द न्यू, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट वेयर योर यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड, so could you please give me your the current location on WhatsApp, so I can reach very easily। रितेश सर ने मुझे अपनी WhatsApp लोकेशन शेयर की, तो रितेश सर कब मुझसे शेयर कर सकते हैं, जब रितेश सर की लोकेशन WhatsApp को पता हो। तो नेचुरली आपकी WhatsApp लोकेशन, आपकी जियो लोकेशन तो WhatsApp को पता ही है, तभी तो आप शेयर कर पाते हो, तभी तो डिस्टेंस बताएगा। आप गूगल मैप की बात करते हो, यहाँ से ये चीज कितनी दूर है, यार इसका बेस्ट वे कौन सा वहां जाने का। अगर गूगल मैप यूज कर रहे हो तो गूगल फर्स्ट नीड्स टू know your location, then they will be जो proposed time and expected time or expected distance और the which way कहाँ ट्रैफिक जाता है कैसे पता चलेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि किस वे में गूगल मैप पे ट्रैफिक कब मिलेगा रोड पर, हाउ कम गूगल नो दैट ऑन दैट पर्टिकुलर रोड्स। नेचुरली जितने भी उस रूट पर जितने भी मोबाइल फोन्स एक्टिव है और जिनमें गूगल एक्टिवेटेड है, चाहे जीमेल या जो भी, गूगल वो देखेगा कि इस रोड पर कितने गूगल यूजर्स दिख रहे हैं अभी राइट नाउ, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड क्राउड को बता के आपको बेस्ट वे सॉल्यूशन देगा कि इन 3 रोड में से इस रोड पे कम क्राउड है। इसका मतलब वहां पर क्राउड नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां पर गूगल जो लोग यूज कर रहे हैं उनका क्राउड कम है, तो इसलिए वहां पर सिर्फ आपको सजेस्ट करेगा, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज हैविंग गूगल और जीमेल यूजिंग द। तो ये तो जितनी कंपनीज हैं इनका बिजनेस मॉडल आपको समझना पड़ेगा कि हाउ दे डू व्हाट दे डू, व्हाई दे डू व्हाट डू, नहीं तो आपसे बिजनेस तो 1 रुपया नहीं ले रहे। वन थिंग। सेकंड थिंग, अभी न्यू पॉलिसी पे जल्दी से बात करते हैं कि अभी क्यों इतना ये इशू हुआ है। ना गूगल की न्यू पॉलिसी आई है, जो गूगल ऐसा बता रहा है कि अभी व्हाट्सएप अब ऐसा बता रहा है नई पॉलिसी के बारे में कि अब जो हमारी जो पॉलिसी है, बिकॉज आपको पता है कि इनकी जो ये सब सिस्टर कंसल्ट है, ये एक ही कंपनी के द्वारा 2012 में व्हाट्सएप अलग था, फेसबुक अलग था, लेकिन फेसबुक को के द्वारा इसका टेक ओवर कर लिया गया, खरीद लिया गया था, इंस्टाग्राम का भी टेक ओवर हो गया। अब ये एक ही कंपनी के अंदर आती जो है फेसबुक। अब व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हमारा जितना भी आपका जो मेरे पास जितना डेटा है मैं शेयर करूंगा अपनी जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक के साथ। अब हमें ये पता है कि गूगल, व्हाई वी ट्रस्ट गूगल, बिकॉज गूगल का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है अभी तक। हम लोग जीमेल कब से यूज कर रहे हैं, इसके पहले जीमेल प्लस था, जी प्लस था, उसके पहले गूगल डॉक्स हम लोग यूज करते हैं। तो गूगल से ऐसा हमको ऐसा हुआ नहीं कि उनके ऊपर कोई ज्यादा ऐसे एलिगेशन लगे हों कि उनके डेटा ब्रीचिंग हुई है, उनके सर्वर में बैकडोर एंट्री से किसी को उन्होंने एंट्री खुद ने दी हो या किसी ने की हो। लेकिन फेसबुक का जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है वो उतना फेयर नहीं रहा है। फेसबुक जो मार्क जुकरबर्ग है, उनके को फाउंडर चेयरमैन है, वो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। अमेरिका में उनके ऊपर लाखों डॉलर का फाइन लग चुका है कि हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारे वहां से डेटा ब्रीचिंग हुई, चोरी हुआ है। अब ये जब इस तरह की डेटा ब्रीचिंग होती है तो आप ये जानिए कि द कंपनी लाइक फेसबुक आल्सो दे टुक at least 4 to 5 months to check out whether the data breaching was happened or not। तो तब तक 5 महीने बाद अगर मुझे पता चलता है कि मेरे घर में चोरी हुई भी थी कि या नहीं हुई थी मेरे सर्वर में, तब तक तो मेरा डेटा 5 महीने में अगर हुई थी, यस टुडे आई नो, आज से मैं इनिशिएटिव या प्रोएक्टिव मेजर्स लूंगा, तो 5 महीने में तो वो डेटा पता ना कहां चले गया, जा चुका है। दैट इज व्हाई द इश्यू इज कमिंग कि the reputation of the Facebook is not so good, and now it is owned by the WhatsApp is also owned by, and the Instagram is also owned by the Facebook, and now they are telling that we are sharing our data with only Facebook।
सो नेचुरली अगर वो बताएंगे कि हम सारा हमारा आपका जो डेटा उठा के हमारे बड़े घर में रखते हैं और बड़े घर में का रिकॉर्ड वैसे भी खराब है, तो आप समझ सकते हैं दिस इज द इश्यू। नाउ व्हाट टू डू। तो अगर हम बात करें तो फेसबुक अभी हमसे इतनी बातें कर रहा है, व्हाट्सएप हमको सब बता रहा है कि भैया हम जो करेंगे कि कैन नॉट सी द योर प्राइवेट मैसेज। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है? व्हाट्सएप ये कहता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन में कि अभी भी जब जांच एजेंसी अगर आप किसी को पकड़ती है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि अगर मैंने आपको कुछ मैसेज भेजा और आपने उसको देख लिया, तो फेसबुक के सर्वर पे कहीं भी वो स्टोर, व्हाट्सएप के सर्वर पे स्टोर नहीं होता है। अगर आपने वो मैसेज नहीं देखा है तो आज नहीं देखा है, लेकिन कल देख सकते हो, परसों देख सकते हो, तो व्हाट्सएप कम से कम इसको 30 दिन तक अपने सर्वर पर रखता है ये डेटा। और अगर आपने देख लिया तो यहाँ से ये जैसे हम बोलते हैं ना रैम की, अगर हम बोलते हैं बफर, वो रिलीज हो जाती है। जैसे आपने यूट्यूब चैनल से या यूट्यूब से कोई मूवी देखी, आपकी बफर में आई, रैम में आई, आपने मूवी देखी और जैसे आपने उसको यूट्यूब चैनल को बंद किया तो वो बफर रिलीज हो गई। तो वैसे ही अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि इट इज बिटवीन द टू वन, जिन्होंने भेजा और जिन्होंने रिसीव किया। अगर उन्होंने रिसीविंग और सेंडिंग सही टाइम पे कर ली तो देयर इज नो मीडिएटर बिटवीन, आवर सर्वर विल बी नॉट द मीडिएटर बिटवीन टू ऑफ द पार्टीज। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मतलब 1 to 1। लेकिन अगर आपने नहीं इसको रिसीव किया है तो वो उनके सर्वर पे पड़ा रहेगा। और वो आप बोल रहे हैं कि ये जितना हमारे पास डेटा रहेगा, चाहे आपका आईपी एड्रेस हो, चाहे आपकी जियो लोकेशन हो, आप कौन सा मोबाइल डिवाइस यूज करते हैं, उस मोबाइल डिवाइस की बैटरी का क्या परसेंटेज है, अभी कितनी चार्ज है कितनी नहीं है, कौन सा आपका एंड्रॉइड का वर्जन यूज कर रहे हो, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं, आपका क्या कितने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप एसोसिएटेड हो, आप कितने व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या डेटा भेजते हो, कितने अदर ग्रुप में क्या लिंक भेज रहे हो, ये सब भी हम शेयर करेंगे फेसबुक के साथ। तो नाउ इट्स अप टू यू पीपल। अगर वो क्लेम, तो हम तो व्हाट्सएप ये सारे क्लेम कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप क्लेमिंग दैट यू व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर शेयर्ड लोकेशन एंड ईदर कैन फेसबुक, ये ऐसी बातें की जा रही है। देखिए होता ये कि वो नहीं देखेंगे, लेकिन उनके सर्वर पे और कहीं से कोई बैकडोर में एंट्री होती है या कोई अटैक होता है, उन्होंने तो अपनी तिजोरी में सेफ रखा लेकिन उनकी तिजोरी पीछे से कमजोर है। So we can't rely. So it's up to the people of India that whether they are accepting that this new policy or not. दूसरी बात, हमारा डेटा वैसे भी हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो काफी कुछ तो हम शेयर कर चुके हैं। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स। आप स्विच हो सकते हो, वेदर अनदर किसी पे भी हो सकते हो, लेकिन जैसे सपोज आई एम आल्सो हैविंग दैट, मेरे पास टेलीग्राम भी है। तो few of my friends that we decided that we will not use after the February that WhatsApp, we will shift it on the fully on Telegram. For the time being, it's a good decision. Fine enough that we are not ready agree to share my data with anyone else, even with WhatsApp. लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि टेलीग्राम भी किसी दूसरे के द्वारा ओवरटेक नहीं हो जाएगा कुछ सालों में। लेकिन फिर भी फॉर द टाइम बीइंग इट्स अ सेफ। तो अब इट्स अप टू यू पीपल, व्हाट्सएप क्लेमिंग ऑल दिस थिंग्स। ऐसे फेसबुक भी बहुत सारी चीजें क्लेम कर चुका है, लेकिन हमें पता है कि रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस, कि जो उनके पास इतना उनके ऊपर फाइन लगा है। सो दिस इज द न्यू लेटेस्ट इमर्जिंग, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा जो कंप्लेन आती है इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास, वो आती है फेसबुक हैकिंग अकाउंट की या व्हाट्सएप हैक के अकाउंट। तो वैसे ही रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है फेसबुक। दैट इज व्हाई इट इज कमिंग एंड दिस इशू इज जस्ट बिकम अ बिग इशू। अदरवाइज there is no issue. One thing is you have to keep in mind that privacy, why we are discussing and I am telling you, and that people may have the query about the new policy of WhatsApp, that we do not feel that our data will be safe and secure. So privacy is the myth in this today's online world. आप ये सोचिए मत, जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप, गूगल पे भी तो डेटा आपका शेयर है, गूगल भी तो आपका शेयर करता है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, सो देन यू हैव टू यूज योर प्रूडेंस वेदर यू विश टू हैव व्हाट्सएप विद दिस ऑफ पॉलिसी। और ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा प्रूडेंस से यूज करिए। आपको यू टू थिंक ऑफ माइंड क्या चीज ईमेल के थ्रू शेयर करना है, क्या व्हाट्सएप। अभी क्या हो रहा है, इजी टू ईज है ना, एक्सेस है। तो हम सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट में मुझे किसी को भेजना है, आई विश टू, मैंने क्लिक किया या फिर कैम स्कैनर से या फिर मेरे माइक्रोसॉफ्ट लेंस से मैंने इसको किया, स्कैन किया और मैं भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। Now you have to be proactive about this kind. If whether you are continuous WhatsApp, perfectly fine, but you have to keep in mind that I have to be more conscious what kind of data and which kind of data मुझे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स जो है मेरे या स्टेटमेंट्स है वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है नहीं। लेकिन समटाइम इट्स नॉट अप टू यू। Suppose if I am associated with your college or university or you are associated with me and I do not have Telegram or any other link, मैं बोलता हूँ सर मेल की जगह व्हाट्सएप भी कर दीजिए ना प्लीज, मेरा मेल अकाउंट अभी कॉन्फ़िगर नहीं है मोबाइल में। व्हाट्सएप में मैं ऑटो अभी हैंड टू हैंड देख लूंगा एंड देन आई विल रिप्लाई टू यू एंड देन इट विल बी कन्वीनियंट फॉर बोथ ऑफ अस। तो
Now we have to change the whole stakeholders, not only you yourself change yourself. So अब हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप पे आप, फेसबुक पे ऑलरेडी इतना डेटा आपका जा चुका होता है, योर नेम, योर लोकेशन, योर स्कूल, कॉलेज, होम टाउन, और ये कैसे जा चुका होता है? क्योंकि हमने ही इनको डेटा डाला है यहाँ पर। अगर मैंने अपना वो फेसबुक अकाउंट बनाया है तो मैंने खुद ने अपने प्रीवियस कॉलेजेस, अपने स्कूल्स, अपने प्राइमरी स्कूल्स का डेटा, मेरा निक नेम, माई फेवरेट मूवी, माई फेवरेट ऑथर अगाथा क्रिस्टी और वट एवर इट इज, मैं जो भी माई फेवरेट प्ले, तो मेरे को शेक्सपियर का प्ले पसंद है तो मैंने वो लिखा हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने ही दी है, और हम अब फेसबुक को या किसी और को बोलते हैं कि आप हमारा डेटा ले रहे हो। सो उन्होंने आपके घर आके नहीं मांगा। अब हमको वी हैव टू थिंक इन दैट लाइन कि जितनी कंपनियां हैं या जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर सोशल कॉज, कोई समाज सेवा के लिए नहीं है। एवरीबडी इज हैविंग अ बिजनेस माइंडसेट, और अगर आपसे वो एक सिंगल पैनी पैसा नहीं ले रहे, नेचुरली यू आर द प्रोडक्ट एंड योर डेटा, योर इन्फॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट, तो वो कहीं ना कहीं तो बेच के लेंगे। तो हमें यूज करना है कि मुझे फेसबुक अकाउंट पे एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी, हमें प्रोएक्टिव रहना है। मुझे फेसबुक अकाउंट पे एक्चुअल अपना ईयर ऑफ बर्थ ऑफ ईयर नहीं डालना है, मुझे एक्चुअल अपना कंप्लीटली जियो लोकेशन नहीं डालनी, सिर्फ इंदौर से भी काम चल जाएगा या सिर्फ एमपी से भी काम चल जाएगा, मुझे अपना पूरा एड्रेस नहीं देना, देन मुझे पूरा निक नेम और ये सारे डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि दे आर नॉट मेकिंग माई आधार कार्ड और ईदर माई पैन कार्ड। तो ये मुझसे बोलने नहीं आने वाले कि आपने डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल क्यों नहीं डाली। यस, ये हो सकता है कि क्योंकि फेसबुक का भी नया नियम है कि 13 वर्ष से कम उम्र के लोग फेसबुक के अकाउंट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो 13 वर्ष से आप ऐसा ईयर ना डालें जो आपकी एज उसमें 12-13 ना होती हो। सेम केस विद जीमेल ऑल्सो, वो कम उम्र में वो जीमेल अकाउंट नहीं बनाना चाहें, बट एक्चुअल डालने की जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। अब बात करनी चाहिए कि अब हमको, अब इस पेंडेमिक के बाद हमको दो चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। We must have concentrated on two aspects of our social presence or virtual presence. One is privacy and second one is security. So अगर हम Facebook यूज करते हैं तो क्या प्राइवेसी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कभी हमने सोचा है? कभी हमने अपने अकाउंट में देखा है कि व्हाट इज ग्रुप प्राइवेसी क्या होती है, पेज प्राइवेसी क्या होती है? सपोज आई हैव वन माय पेज गौरव रावल ऑफिशियल, तो क्या मैंने पेज प्राइवेसी में वो चीज करी कि हु कैन सी माय पोस्ट, हु कैन टैग मी, हु कैन सी माय लास्ट लोकेशन, हु कैन सी माय लास्ट एक्टिव में कब था? ये क्या हमने सेट कर रखा है? नहीं किया तो वी हैव टू चेक अबाउट दैट। अब फोटो प्राइवेसी कौन देख सकता है, कौन इस पे कमेंट कर सकता है, कौन टैग कर सकता है? तो दीज आर द थिंग्स। देन quickly we can see that the security. What is security? Security means that this is a guarantee of fulfillment of the state on which I can say that my data will not surely stolen or observed by anyone. कोई दूसरा मुझे नहीं देख रहा। तो क्या ग्रुप सिक्योरिटी के ऊपर मैंने कुछ काम किया है? ग्रुप या पेज सिक्योरिटी के ऊपर या एड सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ये सब चीज अवेलेबल है फेसबुक। See, the problem is that before the pandemic we were using all the technology. It was fine enough because only 30% was our actively presence on the virtual world or the cyberspace. Now the 70-80% our presence is on the virtual world. So now, without going the two aspects of security and privacy, do not use any technology. Not only I'm just giving you example of the Facebook because majority of you are using. Another thing also, अब कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना है आपको, you have to keep in mind कि मुझे सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी ऑप्शंस देखना पड़ेंगे। क्या चीज मेरी शेयर हो रही, क्या नहीं हो रही, क्या चीज के लिए मुझसे मेरा डेटा वनरेबल है, या क्या मुझे शेयर करना, क्या नहीं करना। दैट यू हैव टू यूज योर प्रूडेंस एंड योर विजडम। नेक्स्ट, जल्दी से हम चलते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट की हम बात करते हैं। इसके ऊपर जो अंडर सेक्शन लगती है 66 COD लगती है। आइडेंटिटी थेफ्ट मींस डिजिटली your documents will be stolen or misused or used by someone else besides you, claiming that it is you. So naturally your debit and credit card, तो हम लोग अनअटेंडेड रखते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए, एक बड़ा कॉमन एक रूमर्स है लोगों में कि अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड होगा, तो मेरे पास ओटीपी आएगा। तो मेरे पास ओटीपी तो आया ही नहीं। डे बिफोर यस्टरडे वन ऑफ माय कजिन, ही इज माय अंकल्स सन, मामा जी के लड़का है, उनका मुझे फोन आया कि मेरे पास 2700 रुपए चले गए मेरे अकाउंट से, व्हाट टू डू। सो आई जस्ट आस्क्ड, तो बोले ही सेड वेरी प्राउडली से, बट आई डू नॉट गॉट एनी एसएमएस और एनी ओटीपी। मैंने किसी को ओटीपी बताया नहीं। लोगों को ये, हमें अभी लगता है कि साइबर क्राइम तभी हो सकता है जब ओटीपी आएगा, ओटीपी नहीं आएगा तो पैसा नहीं आ सकता। देखिए, ओटीपी सिर्फ भारत की सीमा में दो चीज होती है, आईपीसी एंड सीआरपीसी जो अप्लाई होता है हमारे पास, भारत का संविधान का क्षेत्र है वो भारत
वर्ष है, पूरा भारत है, यहाँ का कानून है, भारतीय दंड संहिता है, या हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर्स है। यहाँ पर जितने सर्विस प्रोवाइडर है भारतवर्ष में, अगर यहाँ पर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो वो सिर्फ भारत की परिधि में, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है यहाँ की कोई कंपनी में होता है तो आपको ओटीपी भेजा जाएगा यहाँ की सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, किसी भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। लेकिन कुछ इंटरनेशनल साइट्स ऐसी हैं जो आपके भारत को बिलोंग नहीं करती, आपके देश को, दे डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ओटीपी। So सिर्फ the card itself will be enough for them, कार्ड नंबर एंड कार्ड होल्डर नंबर। सो प्लीज ये रूमर निकालिए कि हमारा कार्ड, तो अब आपके कार्ड को इतना सुरक्षित रखने की आपको जरूरत है, दैट योर कार्ड नंबर एंड योर सीवीसी नंबर। गॉट इट? अब जल्दी से हम चलते हैं, हमारे पास बहुत कम समय है। साइबर स्टॉकिंग इज अनदर इशू। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी का पीछा करना, या किसी को चेस करना, या किसी को सर्विलेंस पे रखना। अब ये चीज जब हम ऑनलाइन करते हैं, दैट इज कवर्ड इन द साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग मतलब किसी की ऑनलाइन निगरानी रखना, किसी को देखना वो कब ऑनलाइन होता है या होती है, ये देखना कि वो कब क्या मैसेज भेजता है या भेजती है, ये देखना कि वो उसको बार बार एसएमएस भेजना, या उसको बार बार ऑनलाइन पर फेसबुक रिक्वेस्ट भेजना, या उसको किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना जिसमें वो नहीं होना चाहता है या चाहती है, देन इट इज कवर्ड इन द साइबर स्टॉकिंग। तो इसमें बिल्कुल भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आप 3 बार से ज्यादा अगर किसी को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजते हैं और इफ द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड और लीस्ट इंटरेस्टेड, ही और शी विल बी अप्लाई फॉर फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, देन देयर विल बी ऑफेंस, आपके खिलाफ अपराध कायम होगा। इसके लिए जो अंडर सेक्शंस लगती हैं 354D लगती है, और आईपीसी की धारा 509 लगती है, 509। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा आपको नहीं करना। अभी क्या होता है, यूजुअली हमको कोई भी किसी ग्रुप में ऐड कर लेता है विदाउट आस्किंग। व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इवन द फेसबुक में तो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, हम एक्सेप्ट करते हैं, पर फिर भी बार बार किसी ने अगर डिनाई कर दी हमारी एक्सेप्ट, तो फिर भी हम उसको रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं और somebody is not appreciating। ओके, हम 2 दोस्त हैं, हम 4 बार 10 बार भेज सकते हैं, हमारा झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, दैट इज फाइन इनफ, इट्स म्यूचुअल कंसर्न। जैसे कि हम एक दूसरे को 10 बार मिस कॉल भेज सकते हैं, 20 मिस कॉल भेज सकते हैं, बट अननोन पर्सन को अगर हम रात के 2 बजे मिस कॉल भेजेंगे, हम दोस्त एक दूसरे को मजाक मस्ती में भेज सकते हैं। इफ वी आर अ फ्रेंड आल्सो, इफ somebody is not taking our ह्यूमर और हमारा मजाक उसने उस सेंस में नहीं लिया और कंप्लेन करता है या करती है, या उसके घर वाले करते हैं, देन यू विल बी इन ट्रबल एंड ऑफेंस कायम होगा इस पर। तो ध्यान रखें, ऐसा कभी नहीं करना है, किसी को भी अपनी मर्जी के बगैर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करना है। इसके 2 रीजन है, मैं भी आगे और बताऊंगा आपको जल्दी से। ये एक बड़ा कॉमन फिनोमिना है साइबर बुलिंग। इसको हम साइबर एब्यूजिंग से भी रिलेट करते हैं। बुलिंग का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, थ्रेटन करना, दबाना, रौब जमाना, धौस जमाना। एब्यूसिंग का मतलब उसको कुछ अपशब्द भी बोल सकते हैं अपन। तो बड़ा मुझे दुख हो रहा है ये बोलते हुए, मैं भी सभी सेमिनार्स में, वेबिनार में बोलता हूँ कि आज अभी जो हम, टुडे इज द एज ऑफ द वेब सीरीज और मिलेनियर एज, जो मिलेनियर जो हमारी जनरेशन है, ये वेब सीरीज देख के बड़े हो रहे हैं। हम लोग रामायण और महाभारत देख के बड़े हुए थे, या हम लोग डोनाल्ड डक को देख के बड़े हुए थे, अब ये लोग सिंचन को देख के बड़े हो रहे हैं। सो नेचुरली द लेवल ऑफ द लैंग्वेज एंड द डिग्निटी ऑफ द लैंग्वेज इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। अब भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, हम देख रहे हैं, क्योंकि जब जैसा आप सुनते, जैसा आप देखते हैं, नेचुरली वैसा आप रिएक्ट करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं, और वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी वॉइस में, आपके एटीट्यूड में, आपके एप्टीट्यूड में, आपके परसेप्शन में, आपके बिलीव में। एंड व्हाट इज योर परसेप्शन, बिलीव एंड योर पर्सनालिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड बिकम योर पर्सनालिटी। और फिर जब वो चरित्र का भाग हो गया, फिर क्या होगा कि फिर अभी किसी से आपका झगड़ा होता था पहले, तो हम लोग कुछ एक दूसरे को आप बोल सकते हो। रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में ये डिफरेंस है कि रियल वर्ल्ड में आप किसी को अब्यूज करते हैं, डराते, धमकाते, यू कैन डिनाई दैट दिस एक्ट ऑफ माइन इज नॉट एक्चुअली डन बाय मी, ये मैंने नहीं किया था, ये मैंने नहीं बोला था, क्योंकि वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था। बट इन द डिजिटल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड, इफ यू टेक्स्ट समथिंग टू समवन व्हिच इज नॉट सो डिग्निफाइड, और which is for you it is dignified, है ना, बट बीइंग अ फ्रेंड आपने भेजा, लेकिन उसने उसको उस सेंस में नहीं लिया, और उन्होंने अगर इसकी कंप्लेन की, देन इट विल बी एज ए साइबर बुलिंग में आएगा, आपका केस बनेगा अंडर सेक्शन 67 में। ऐसी कोई भी शब्द या कोई चित्र या ऐसी कोई वीडियो क्लिप, अच्छा सिर्फ ऐसा नहीं कि अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना ही साइबर बुलिंग या साइबर अब्यूजिंग है, किसी की बॉडी शेप, कास्ट, क्रीड के ऊपर वो टारगेट करके कोई कमेंट करना ग्रुप में, उसके शरीर के लेके, उसके बालों को लेकर, उसके फेस को लेकर, उसकी बॉडी शेप को लेकर कोई भी ऐसा मैसेज या टेक्स्ट करना जिससे उसकी गरिमा गिरती हो, और ऐसा व्यक्ति कोई कंप्लेन करता है, अगर ऐसा व्यक्ति सपोज आपकी कंप्लेन से, आपकी ऐसी जो आपकी कमेंट से ऐसा डिमोरलाइज होकर या फिर मेंटली
डिप्रेस होकर कोई सुसाइड कमिट करता है, करने की कोशिश करता है, देन आपके ऊपर आईपीसी भी लगेगी। तो प्लीज डू नॉट डू any kind of cyberbullying, because these are the digital footprints. See, what is digital footprints? It can be denied, it can be vanished, deleted. One or another server may have the copy of what you text to someone. जैसे Facebook भी बात करें, WhatsApp भी बात करें, end to end encryption है, fine enough. आपने इनको भेजा Facebook WhatsApp से, इन्होंने इनको भेजा, आप दोनों ने डिलीट कर दिया, आपसे भी मिसप्लेस हो गया, आपसे भी मिसप्लेस हो गया, वॉट एवर इट इज, लेकिन फिर भी वन और अनदर सर्वर में है द कॉपी। जांच एजेंसी जब लिखेगी फेसबुक को या व्हाट्सएप को या इंस्टाग्राम को या ट्विटर को, उनको देना ही होगा इस देश की परिसीमा में, इसमें अगर वो आते हैं और यहाँ पर उनके यूजर है तो आप ध्यान रखिए। अभी भी हमारे वहाँ व्हाट्सएप को दिल्ली पुलिस को भी पूरी एलिजिबिलिटी गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। इसके अलावा ऐसी 6 जांच एजेंसी और है जो आपका किसी भी तरह का डेटा, द व्हाट यू हैव सर्फ ऑन गूगल सिंस लास्ट 2 years, वो डेटा भी उनके पास है। गूगल से एक ईमेल पर मंगाया जा सकता है, व्हाट्सएप से 2 साल पहले आपने क्या टेक्स्ट किया था वो मंगाया जा सकता है, फेसबुक से भी पूरा लॉग मंगाया जा सकता है। तो आप ये ना सोचिए कि तो बहुत पुरानी बात हो गई, कुछ नहीं पता चलेगा किसी को। इट्स नॉट लाइक दैट। डिजिटल फुटप्रिंट विल बी देयर इन द सर्वर। एक लॉग फाइल होती है, जितने जितने सर्वर से वो मैसेज गया वहां पर हर एक पे एक लॉग फाइल, एक लिस्ट है, and you will be caught by one or another law enforcement agency and you will be in trouble. Please do not do that. अब जल्दी से हम बढ़ते हैं। एक फोटो मॉर्फिंग ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं ये बड़ा ईज में किसी का भी फोटो किसी की बॉडी पे लगा के जस्ट फॉर ए फन इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे डालते हैं, जस्ट एज ए ग्रुप में किसी का बर्थडे। अगर किसी ने उसको सीरियसली ले लिया, ये एक्चुअल केस हुआ था, किसी व्यक्ति ने ऐसा, एक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, इनको एलिगेशन लगाकर कुछ इस तरह से एक फोटो लगाया था। एक्चुअल फोटो ये था, मॉब फोटो ये था, और जस्ट फॉर ए फन की वो अपनी चलाती, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। उनके ऊपर केस हुआ लखनऊ में, उनको अरेस्ट किया गया अंडर द आईटीएक्स एक्ट प्रोविजन। तो प्लीज ऐसा ना करें आपके ऊपर इस तरह की, अगर आप कुछ करेंगे तो अंडर सेक्शन 66E है। अच्छा, अंडर सेक्शन 66E ये नहीं बोलता है कि कोई अश्लील फोटो आपने की हो। देखिए यहां पर एक हमारे पास एक केस हुआ था, उसमें ऐसा कोई भी चित्र, चलचित्र, नग्न, अधोनग्न या पूर्ण नग्न, मतलब कोई जरूरी नहीं कि पॉर्न पूरा, आपके हिसाब से वो बड़ा कॉमन है। जैसे ये जो ड्रेस पहनी हुई है, जो हीरोइन है, जो स्टार है, उनके लिए इस तरह की ड्रेस बड़ी इजी है, लेकिन द पर्सन जिनका इनके ऊपर फेस लगाया, उनके ऊपर अपने कंधे से भी आंचल अपने साड़ी का गिराना, ये अनडिग्निफाइड है। तो ऐसी भी कोई चीज जिससे किसी की गरिमा गिरती हो या गिरने की संभावना हो, ऐसा वो व्यक्ति सोचता है, तो अगर वो फाइल करता है कंप्लेन अंडर सेक्शन 66E में, आप दोषी पाए जाओगे, 3 साल की सजा, 2 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों, ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द केस। तो आपके लिए कंधे पर आंचल ना होना, ये आपकी कल्चर या आपका जो जो कैटेगरी है या कास्ट है या जो आपका सोसाइटी में जो स्टेटस है या जिस जॉनर को आप बिलोंग करते हैं स्टेट, वहां पर बड़ा कॉमन होगा, लेकिन फैशन भी हो सकता है। लेकिन जिस सोसाइटी को वो पर्सन बिलोंग करता है, उसके लिए अगर ये गरिमा गिरने वाली बात है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा तो फोटो था, इसमें क्या वल्गर था, इसमें क्या खराब था। लेकिन अगर उनके लिए आंचल, सीने पर आंचल रखना उनकी कल्चर का पार्ट हो, बुर्का पहनना, और आपने उनको ऐसा फोटो लगा दिया हो, या किसी को आपने ऐसा फोटो लगा दिया, देन इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू एंड यू विल बी। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास समय की कमी है। अब जल्दी से मैं एक चीज बताता हूँ। सेक्टर से हमने बात कर ली कि फेसबुक और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर इस तरह की गतिविधि में लोग लिप्त हैं, आप प्लीज इसमें ना आए। हम क्विक करते हैं कि मॉलवेयर प्रिवेंशन की बात करते हैं कि मॉलवेयर अगर किसी तरह से आते हैं। उसके पहले मैं एक क्वेश्चन को आंसर देना चाहूंगा। मुझे कल पूछा गया था कि कैसे जाने की कोई चीज यूआरएल जो है वो फेक लिंक है या फेक यूआरएल है, या जिसको क्लिक करने से या जिसको डाउनलोड करने से हम लोग परेशान हो सकते हैं। तो अगर ये मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, आप देखिए इसको, www.virustotal.com। इस वेबसाइट पर जाकर आपको लगता है कि कोई सस्पेक्टेड अनसॉलिसिटेड मेल या अनसॉलिसिटेड लिंक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या आपके ईमेल पर आती है, और क्लेम किया जाता है कि इसको क्लिक करिए और आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे और ये होगा। इट मे बी अ फिशिंग लिंक। फिशिंग लिंक्स क्या होती है? ऐसी मलिशियस लिंक होती है जिसके पे क्लिक करने से आपका डेटा सेक्रीफाइस हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, करप्ट हो सकता है, या फिर डुप्लीकेट एक कॉपी उसकी उनके सर्वर पे ट्रांसफर हो सकती है। आपका हैंडहेल्ड डिवाइस हो, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो ऐसी यूआरएल को पहले इस वेबसाइट पर जाकर कॉपी करो और आप उसको स्कैन करा के देख सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाएगा कि ये वायरस फ्री है या ये यूआरएल सही है या नहीं है।
देन आपको वो अटैचमेंट आप डाउनलोड करें, इट्स नो इश्यू। हम जल्दी से बात करते हैं स्पाईवेयर की। हम बात एक बड़ा अभी हम लोग देख रहे हैं रैंसमवेयर अटैक, ये बड़ा है। ये कुछ मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के कुछ एप्लीकेशन है, सैमसंग है, Ryuk है, प्योर लॉकर है, Zeppelin है। तो इस तरह की प्रोग्राम को इसीलिए बनाया जाता है कि मलिशियस लिंक भेज के आप क्लिक करें और आपका पूरा डेटा एनक्रिप्ट हो जाए, और फिर वो आपसे डिमांड की जाती है पैसों की कि आप रैंसमवेयर या रैंसम मनी दीजिए। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो प्लीज डू नॉट पे एनी सिंगल पैनी। आप अगर तो एक पैसा भी ना दें, क्योंकि ये देने के बाद भी आपका डेटा वापस नहीं करते हैं। आप उनके लिए एक बड़ा इजी टारगेट हो जाते हैं। हमेशा आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी, आपका डेटा कभी भी लुटाया नहीं जाएगा। तो प्लीज आप इससे बचे कैसे? रैंसमवेयर से बचने का सबसे पहले तरीका, नेवर क्लिक और ऑन अनवेरिफाइड लिंक्स। कभी भी ऐसी कोई लिंक आपको आती हो फेसबुक, व्हाट्सएप पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, लिंक को ना क्लिक करें। डू नॉट ओपन अनट्रस्टेड ईमेल अटैचमेंट। मैंने बता दिया कैसे करना है आपको पिछले साइट पे, उसको पहले स्कैन करके देखिए, तब अटैचमेंट को डाउनलोड कीजिए। ओनली डाउनलोड फ्रॉम द साइट्स यू ट्रस्ट। देखिए बड़ा सा कॉमन फिनोमिना है, अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर या इसेंशियल या कोई फैसिलिटी या फीचर कोई डाउनलोड करना है तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की साइट पे जाइए। मुझे अगर एंटीवायरस नॉर्टन का चाहिए तो नॉर्टन एंटीवायरस की साइट पर जाइए। एवीजी का एंटीवायरस चाहिए, मैकेफे का चाहिए, या फिर आपको क्विक हेल्थ चाहिए तो क्विक हेल्थ की आप जेन्युइन साइट पे जाइए। आप गूगल पे सर्च मत करिए वो साइट, वहां पर आपको पूरी फुल यूआरएल डालिए उस कंपनी की और वहां की साइट पे जाकर आप करिए। गूगल पे सर्च में डाल के वो साइट ना करने की कोशिश करिए। अनदर थिंग, अवॉइड गिविंग योर पर्सनल डेटा। कोई कितनी भी आपसे डिमांड करे और आपको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कि दे नीड योर पर्सनल डिटेल फॉर एनी, अभी अब बड़ा एक नया सा चल रहा है कि वैक्सीनेशन के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे फेक मेल भेजी जा रही और फेक लिंक के थ्रू लोगों का पर्सनल क्रेडेंशियल लिया जाए और उनको चीट किया जा रहा है। तो प्लीज डू नॉट डू दैट। नेवर। सिर्फ यही नहीं कि ऑनलाइन आप पे वायरस अटैक होगा या इस तरह का रैंसमवेयर मांगा जा सकता है, आपके ऊपर ऑफलाइन भी कोई अनफेमिलियर यूएसबी आप अपने सिस्टम में ना इंसर्ट करें विदाउट स्कैनिंग। कीप द सॉफ्टवेयर अपडेटेड। आपको माइक्रोसॉफ्ट के अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एसेंशियल पे जाइए, वहां पर आप देखिए। एंड द गोल्डन रूल ऑफ दैट, बैकअप योर डेटा। सबसे बड़ा गोल्डन रूल यही है, कितना भी कुछ आप कर लें, कितना भी आप सॉफ्टवेयर लगा लें, फायरवॉल लगा लें, फिर भी अगर कोई वनरेबिलिटी या कोई ऐसा मेजर अटैक होता है वाइड लेवल पर या वर्ल्ड वाइड लेवल पर, so you have to make sure that you have the another copy of your data, so your data will be not fully compromised। मेरे पूरे सिस्टम का एक, आप 30,000 का एक सिस्टम खरीदते हैं, 3,000 की एक्सटर्नल ड्राइव जरूर खरीदें। आप 20,000 का एक मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप 200 रुपए की पेन ड्राइव जरूर खरीदें। सो एटलीस्ट आपके पास आपका बैकअप होगा पूरा। देन यू कैन से कि कुछ समय का डेटा ही जाएगा, बट आपका मेजरली डेटा फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा वंस योर डेटा विल बी कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस। देन हम लोग जल्दी करते हैं, हाउ टू रिपोर्ट, टू whom टू रिपोर्ट। देखिए, कॉल द राइट पर्सन। अगर आप इंदौर को बिलोंग करते हैं तो मैं इसलिए, क्योंकि आई एम वर्किंग विद द इंदौर पुलिस और एमपी पुलिस, तो मैं सिर्फ इंदौर के बारे में आपको बता सकता हूँ कि हमारे पास कुछ चीजें हैं। हमारे पास इंदौर साइबर सेल का भी यहाँ नंबर है। आपको इंदौर साइबर सेल को अगर साइबर रिलेटेड इश्यूज है तो यू कैन रिपोर्ट। हमारे पास जो हायरकी है, स्पेशली मध्य प्रदेश पुलिस में 3 हायरकी। फर्स्ट यू हैव टू रश टू योर लोकल पुलिस स्टेशन, and first if financial fraud is happened with you, तो first you have to rush to your bank, concerned bank, वहां पे dispute form भरिए, एप्लीकेशन दीजिए, उनसे बैंक स्टेटमेंट लीजिए। देन योर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के साथ आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराना है। उसके बाद अगर वहां आपको लगता है कि यहाँ पर वहां दे मे हैव द डेडिकेटेड स्टाफ ऑफ द पीपल हु सपोज टू टेक केयर ऑफ द साइबर रिलेटेड केसेस, then each CSP circle we have the 3 dedicated staff who is supposed to take care of the cyber related issues. Then on the additional level, SP level, we have again 1 or 2 staff members available who is supposed to take care of that the cyber related issues and cyber investigation, जहां पर कुछ केस में मदद होती है। और उसके अलावा हमारे पास भी 2 स्पेशल सेल्स, वन इज क्राइम ब्रांच एंड वन इज स्टेट साइबर सेल। लेकिन स्टेट साइबर सेल मोर देन 60, हमारे पास जबलपुर हाई कोर्ट का डिसीजन है कि 60-70 हजार से ऊपर का अगर फ्रॉड हुआ तो यू सपोज टू रश टू द स्टेट साइबर सेल। 1-2 हजार रुपए का या ओटीपी या OLX, अभी हमारे पास जो फ्रॉड हो रहा है, अगर इस तरह के भी फ्रॉड होता है, इंदौर की बात कर रहा हूँ स्पेशली में, एंड यू हैव टू रश टू द क्राइम ब्रांच इंदौर एंड रिपोर्ट इट। More than that, if you wish to know about the cyber security updates, so I am available in almost all the social media. You can visit my YouTube channel also, Gora Rawal Official. You can visit me. I am also Twitter on with the Gora Rawal, Rawal G Official के नाम से हूँ मैं।
Then Facebook page is also there, that Gaurav Rawal official. LinkedIn also you can search me, Gaurav Rawal official. So, and you can mail me on gauravrawalofficial@gmail.com. सबसे बड़ा golden rule है, be informed, be vigilant and be safe. सबसे बड़ा you yourself supposed to inform. हमें जानकारी हो तब हम खुद को भी बचा पाएंगे, and you can inform others also, and by this way we can be a safe and secure. And use your prudence, stay connected. कोई भी टेक्नोलॉजी यूज हो तो सबसे पहले उसका मैनुअल पढ़िए. बिना मैनुअल के अगर आपने कार खरीदी तो कार चलाना सीखिए. माइक्रोवेव ओवन खरीदा तो ओवन का मैनुअल पढ़ते हैं, वॉशिंग मशीन का मैनुअल पढ़ते हैं, तो फिर अब इंटरनेट पे जा रहे हैं तो उसका मैनुअल क्यों नहीं पढ़ेंगे. तो आप यूज द सॉफ्टवेयर बट विद द मैनुअल एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फीचर्स, देन यू विल बी 90% safe, I would say. Then again there will be a chance to vulnerability, but that's not a question, but jitna hum kar sakte utna hum kare. With these words I wish to end my session, and iske alawa if the time permits me, so you can we can handle one or two questions. So Ritesh sir, now I'm just closing my screen share, and then the people may ask the questions. Okay, sir. Thank you, sir, for a knowledgeable and wonderful session. And now I request participants to write their queries in chat box. It was really a wonderful session and knowledgeable session. I hope so students have got benefited with this session. And I would request all the participants to fill the feedback form. And now I would like to invite Kuber sir for vote of thanks. Sir, please. Thank you very much, ma'am. I am audible to everyone. Yes, my voice is clear. Yes, sir. Thank you so much, Ritu ma'am. A very good afternoon to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. On behalf of Medicaps University Indore and Department of Computer Application, Computer Science, Forensic Science, and the entire fraternity of the university, my sincere thanks to management and our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Sunil Kusumari, for giving the opportunity to conduct a webinar on emerging trend in cyber security and cyber crime. I give a really heartfelt thanks to Professor Gaurav Rawal, who spent his busiest time gracing the occasion. Today we had the opportunity to hear your thoughts, and this is the definitely encouraging student as well as the all audience for how to maintain the security, how to use the technology. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. I would also like to thank our head of department, Professor Arvind Patil sir, head computer application, Dr. Jitendra Chaudhary, head computer science, Professor Ajay Vishwas, head forensic science, all staff members. And I would like to thank each one of you who are directly or indirectly associated to conduct this particular event. Thank you very much, all of you. Thank you, ma'am. Thank you very much, Gaurav sir. Thanks a lot for your wonderful session, and thank you very much from all of us.